these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. So as you can see on the screen, that amongst the things that he was asked to procure, an army uniform, a navy uniform, a ranger's uniform, along with, if you could stay on that slide with the uniform, please, with the name tags. And when he was loitering around in Pakistan, procuring these items, because our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation, they put him under surveillance when he tried to procure these items. And while he was under surveillance, our intelligence agencies were fully alert and following his trail as to what activities he is carrying out. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIMs, SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items, and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan of India to malign Pakistan and to use such propaganda items and disinformation and misinformation. And we've been very, very active in countering the misinformation and disinformation by the Indian media and by the Indian state. Now, this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan, because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level, by all nations. And Pakistan is well respected. So this is the kind of propaganda warfare that they resort to. And detailed investigations have been carried out. When Ijaz Mallah was taken into custody, and he has confessed to his crime. We will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. मेरा नाम है इजाज़ मल्ला और अब्बू का नाम है रियाज मल्ला, और हमारा काम है दरिया के धंधा करना मच्छी का। हमारा तालुका शाहबंदर और ज़िला ठट्टा में हम रहने वाले हैं। हमारा पीछा है मच्छी मारने का धंधा, शिकार करने का मच्छी का, और हमारे बचपन से ही मच्छी मारने के मारते हैं, और यही शिकार हमारा है, यही हम काम करते हैं। हमारे सत्य पीढ़ियों से ही यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। तो हमने डर की वजह से, एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया, तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप छुड़ाएं। तो उसने मुझे छुड़ाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीज़ें बताई। उसने बोला ये सामान लेके आना, और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। और उसके बाद जो है हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की,
वो लेके आना है, और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को। और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आने। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। इकट्ठे करने के बाद हमने वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था अशोक कुमार, उसको मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी, और उसके बाद वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in, and this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies, that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen, because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further, because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honorable colleague, Minister of State for Interior Talal Chaudhary Sahab, to address the local media ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, if we could keep the questions just related to this particular activity. Thank you very much. जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया है, मैं भी उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ. ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है. कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा. कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफ़ी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से प्लान करने की लगता है कोई कोशिश हो रही है. पहले ये था ऑपरेशन, अब ये है प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, जिसको किसी ना किसी तरह लॉन्च किया जाता है. ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है.
वो गोडी मीडिया जो था और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पाकिस्तान का, खुसूसन पाकिस्तान की अस्करी जंग जीतने से पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी की जंग जीती, और वो गोडी मीडिया जो था वो इसमें नाकाम रहा। ये जो अभी ऑपरेशन की बात है, इसमें आपको चंद चीज़ें बताई गई हैं कि एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको कहाँ कहाँ रखा गया, कहा गया कि भी वो उनके कानून के तहत तकरीबन 3 साल के लिए जेल में जाएगा, उसको वो खौफ दिलाया गया। फिर उसको बाद उसके साथ ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें हुई, वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी आपके सामने, या वो हमारी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं, वो उसे दिए गए। उसके बाद ये वर्दियाँ और उस पर नाम भी उस तरह के जिसमें बड़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको यानी नाम से ही पता चले कि मुसलमान हैं, और उसी तरह के टैग्स जो हैं वो कहा गया कि वो उन पर होने चाहिए। फिर जोंग की सिम ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला है। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है, और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ भी यहाँ बड़ा कोई डट के खड़े हैं या उनके मुकाबले में हैं, या उनको भी साथ आप हमारे साथ खड़ा करके कोई अपना एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई और इसकी जो आपके सामने कुछ आपके वीडियो आपने देखी है, इसके अलावा कुछ ऑडियो नोट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और उसमें से भी कुछ आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पकड़े गए हैं पहले ही। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी विजिलेंट रहना है कि किसी लालच और किसी खौफ में किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं, और एक एक मूव पर उनका वो देख रहे हैं, वो आपके जहाज़ हो या इस तरह की कोई आपकी मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें दोबारा इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये कितनी दफ़ा आपने किया है। लाहौर तबाह हो गया है, कराची पोर्ट को आग लग गई है, ठीक है जी, आखिर सामने आ जाता है। एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो ISI ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के फ्लोर ही 2 हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इस तरह की इसके लिए ये सारा कुछ अरेंज किया गया था। फेक इनकाउंटर्स, स्टेज्ड इंसिडेंट्स, ये करना और इसको डिस्प्ले करना, बाद में उसको एक स्टेट का जो नैरेटिव है वो बनाने के साथ आपका प्राइवेट मीडिया जो है वो पीछे खड़ा करके दुनिया को बताने की कोशिश करें। मैं दोबारा कह दूं, फेक इनकाउंटर्स और स्टेज्ड इंसिडेंट्स। तो मैं इसके साथ पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये जो उनके ऑडियो मैसेजेस हैं वो आप सुन लीजिए। इंडियन हैंडलर के साथ जो एक ऑडियो नोट्स इस पे फोरेंसिक करवाया गया था इजाज मल्ला के फ़ोन का। A forensic analysis was done from Ijaz Mallah's phone, from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. तो अब वो जरा चला दीजिए। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई
और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, मतलब तीनों सेना का अपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। ये आपने सुने। हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान दूसरों की सॉवरेनिटी का भी एहतराम करता है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज़ की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज़ भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। ये सारे का सारा प्रोपोगंडा ऑपरेशन, स्पेसिफिकली इसका इसी नाम से ये प्रोपोगंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते